Okay. So as you know, today is the second last lecture of the STA. So here we will discuss how we can fix the setup and hold time. Okay. So जो न्यू स्टूडेंट्स हैं, आप मेल आईडी मुझे दे देना, ठीक है। आपको ऑल लेक्चर्स एक्सेस हो जाएंगे और पीडीएफ भी, तो आप वहां से आके एक बार रिवाइज कर लेना। जो स्टूडेंट्स एमटेक कर रहे हैं उनके लिए कह रहा हूँ। और जो बच्चे एमटेक नहीं कर रहे हैं, अभी जाने वाले, उनके लिए फिर से एक अगला बैच आएगा, तो उसमें आप ज्वाइन हो सकते हैं। अभी एसटीए चल रहा था, एसटीए ऑलमोस्ट खत्म हो गया है। कैसे सेटअप एंड होल्ड को हम, ठीक है, बैलेंस करेंगे, रिमूव करेंगे वायलेशंस, आज डिस्कस करते हैं उसको। ठीक है। सो देखो, एसटीए में क्या है, आपका सेटअप एंड होल्ड आता है। मेन इसी के ऊपर सभी काम हो रहा है। अभी तक आप जो भी लेक्चर्स देखे हो, हम इसी के ऊपर काम किए, सेटअप एंड होल्ड। ठीक है। अभी तक आपने क्या देखा है कि हाउ वी कैन फाइंड द सेटअप वायलेशन, हाउ वी कैन फाइंड द होल्ड वायलेशन, हाउ वी कैन फाइंड द सेटअप स्लैक, होल्ड स्लैक्स। Okay, but we don't see how we can fix the setup violation, how we can fix the hold violation, otherwise how we can fix the slacks. So here there are two methods. Okay, actually for the design point of view there are two ways so that we can fix the setup and hold violation. Okay. So for engineer there are two types of engineer who fix the setup and hold violations in the VLSI. First, design engineer. Okay. First, design engineer. They are also called article engineer. Article engineer. And second one, PD engineer, physical design engineer. PD guys. Okay. So basically, this setup and hold violation is fixed by either article design engineer or PD design engineer. I will discuss which part should be taken by the article design engineer or which part should be taken by the PD design engineer. Okay. But mainly there are two types engineering the ASIC, front end and back end. So this design engineer, article design engineer, comes into the front end part, front end part, and this PD design engineer come in the back end part. Okay, so there are two type of STA also in the front end part. Those STA is called pre-STA, pre-STA, and in the back end or PD will be called post-STA or actual STA. Okay, but STA are two types. STA. Article design is also going to solve and PD design is also going to solve. We will see in the both way how the article design engineer will be fix the setup violation, how the backend PD design engineer, physical design engineer will fix the setup and hold violation. Yeah, I write it here. Physical design. Now, so if they ask, like, if any interviewer asks, like, how you can fix the setup and hold violation, then you should definitely told about we can solve the setup and hold violation with the two methods. First, how the article design engineer will be solved, and how the PD guys or physical design engineer will be solved the setup and hold violation. So now we will see. So before going to start how we can solve the setup and hold violation, I will I will show you some basic things that we require into the further lectures. Okay. So we will discuss about the sales. What is the sales? How many types of sales? Okay, in our VLSI, sales in VLSI, because this sales is going to the some important roles for the fixing the violations. That's why I taught here. Okay, so these sales are three types, mainly three types.
First is the SVT sale. SVT sale means standard sales. This is the सेल्स बता रहा हूँ क्या है। ये सेल्स क्या होते हैं, लाइब्रेरी होते हैं। ठीक है, लाइब्रेरी होते हैं जिसमें बहुत सारे, इसके अंदर तुम्हारे सेल्स के अंदर क्या होते हैं, कैपेसिटर भी होते हैं। ठीक है, वही सेल है जो स्टोरेज करने का होता है। जो आप जो बैटरी वाली सेल देखे हो ना, कैपेसिटर जैसे इसके अंदर भी होता है सेल्स के अंदर, तो ये एनर्जी स्टोर करता है। ठीक है, भाई मैं आगे बताऊंगा, इसको डिटेल में भी बताऊंगा कि ये स्टैंडर्ड सेल्स है क्या। ठीक है, तो ये बेसिकली सेल्स होते हैं जो जिसमें बहुत सारे कैपेसिटर्स भी होते हैं, इंटरनल कैपेसिटर। ठीक है, और भी सारे वैल्यू स्टोर होते हैं जिससे कि हम टाइमिंग वगैरह को फिक्स करते हैं, लीकेज वगैरह को फिक्स करते हैं। ठीक है, सेकंड कौन से टाइप्स के सेल्स होते हैं, एचवीटी सेल्स। इट्स मीन हायर से। ये वीटी क्या है ना, अभी आप पढ़े हो, अभी मैं सुना रहा हूँ ये वीटी क्या है। एलवीटी मीन्स लोअर। सो देखो, इसमें क्या होता है ना, यही सेल्स बेसिकली क्या होते हैं, ये डिले भी डिसाइड करते हैं कि किसमें डिले हाई होता है, लीकेज भी डिसाइड करते हैं कि लीकेज कैसे हाई होता है। ये डिले क्या है, लीकेज क्या है, ये सब मैं आपको एनालॉग में पढ़ाऊंगा। ठीक है, और इसका मैं पूरा डिटेल भी पढ़ाऊंगा एनालॉग में। बट अभी आप जिस जो आपके लिए अभी है, एसटीए के लिए जो है रिक्वायरमेंट है, अभी आप यहाँ पर देखो। अगर मैं बात करूं कि एसवीटी और एचवीटी और एलवीटी का स्टैंडर्ड है। स्टैंडर्ड मीन्स क्या होता है, एक फिक्स है। ठीक है, मतलब ये ठीक है, ना कम है ना ज्यादा है, स्टैंडर्ड वैल्यू फिक्स वैल्यू होता है। एचवीटी मीन्स हाई। हाई वीटी मीन्स थ्रेशोल्ड। आपने एनालॉग में पढ़ा होगा वीटी। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, थ्रेशोल्ड कहते हैं। ठीक है, थ्रेशोल्ड वीटी, ये स्टैंडर्ड थ्रेशोल्ड वोल्टेज और हाई थ्रेशोल्ड वोल्टेज और लोअर थ्रेशोल्ड बेसिकली ये है। ठीक है, अब ये कैसे दिखते हैं, कैसे होते हैं, ये सब मैं आपको एनालॉग में पढ़ाऊंगा। अभी जान जाओ, अगर मैं एक डीले की रिस्पेक्ट में बात करूं कि डीले किसमें ज्यादा होता है किसमें कम होता है, तो आप एक जान सकते हो ऐसे। ठीक है, अगर मैं कहूँ आपको एक डीले का ग्राफ बना के दिखाऊं और ऑर्डर दिखाऊं आपको, तो ये सब याद रखना। ठीक है, तो अगर मैं डीले की बात करूं तो सबसे ज्यादा डीले होता है आपका एचवीटी। एचवीटी सेगमेंट, उससे कम होता है आपका एल एसवीटी स्टैंडर्ड। एसवीटी, उससे कम होता है आपका एलवीटी। ये डीले की बात कर रहा हूँ। डिले मीन्स क्या है, मैं आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था। इट्स मीन देर आर सम स्टॉपिंग पॉइंट्स। इट्स मीन देर आर सम काइंड ऑफ रुकावट है समझ। ठीक है, कि थोड़ा स्टॉप हो रहा है डिले, जिसमें जिस पाथ में मोर नंबर ऑफ डिले आएंगे उस मीन्स जो भी टाइमिंग जाएगी थोड़ी लेट से जाएगी, मीन्स देर हो जाएगा। इट्स मीन अगर मैं बात करूं, ठीक है, कि टाइमिंग के रिस्पेक्ट में बात करूं कि सबसे ज्यादा टाइमिंग किसकी सही होगी, कौन टाइमिंग के लिए सबसे अच्छा होगा, तो क्या कहोगे। अगर मैं टाइमिंग के परस्पेक्टिव से बात, अगर टाइमिंग को हमको मेजर करना है कि सबसे ज्यादा टाइमिंग अच्छी किसमें होगी, तो सबसे ज्यादा किसमें होगा, एलवीटी में, कम डिले है। उसके बाद से एसवीटी स्टैंडर्ड वाला, उससे बाद में एचवीटी। ठीक है, एचवीटी एक्चुअली क्या है, आ, ये होता क्या है, लोअर हायर मीन्स होता क्या है, जब आप पढ़े होगे ना, आप आपको मैं एनालॉग में पढ़ाऊंगा, बट अभी मैं आपको बेसिक बेसिक बता दूं ताकि आप थोड़ा बहुत जान जाओ। ये आपने सीमॉस वगैरह पढ़ा होगा। ठीक है, यहाँ पे होता है कैपेसिटर, ये इन्हीं सबको मिला के ना सेल्स कहते हैं। जो आगे मैं बताऊँ क्या होता है, ये स्विचिंग होता है। ये स्विचिंग होता है, इनपुट स्विचिंग आउटपुट स्विचिंग। तो हाई वोल्टेज मीन्स क्या है ना, हाई वोल्टेज मीन्स क्या है, कि इसका जो स्विचिंग है ना, स्विचिंग जो स्विचिंग है वो बहुत फास्ट होता है। स्विचिंग बहुत फास्ट होता है। एंड एलवीटी मीन्स क्या है,
थोड़ा लोअर स्विचिंग होता है। तो जब स्विचिंग बहुत फास्ट होता है ना, तो चांस ज्यादा होता है ना कि करंट आपका लीक कर जाए। अगर बहुत जल्दी स्विचिंग होता है, फास्ट होता है, तो लीकेज का चांस ज्यादा होता है। तो अगर मैं लीकेज की बात करूं यहाँ पे, ठीक है, इसके डिटेल में लॉ में पढ़ाऊंगा तो क्या है ये। लेकिन अगर यहाँ पे मैं लीकेज की बात करूं, कि लीकेज के लिए अगर कौन सा सेल अगर यूज करना पड़ेगा आपको, तो सबसे ज्यादा लीकेज किसमें होगा? एचवीटी में। फास्ट है सबसे। उससे थोड़ा स्लो कौन सा होता है? एसवीटी में, इसका लीकेज होगा फिर। उसके बाद से एलवीटी। अब देखो, अगर मैं ग्राफ बना दूं आपको, बेसिक ग्राफ बना दूं कि आप कैसे जानो कि सर क्या है। अगर एक ग्राफ के बेसिस पे मैं आपको समझाऊं, कैसे जानेंगे हम। तो देखो, यहाँ पर एक ग्राफ होता है। ये सब एनालॉग में पढ़ाऊंगा, बट अभी जरूरी है कुछ तो बता रहा हूँ। ये समझ लो आपका कोई टाइमिंग के रिस्पेक्ट में ग्राफ है। ये समझ लो आपका VT है। ठीक, चलिए आउट। देखो ये हमारा 0 पॉइंट। ये ग्राफ ऐसे होता है, ऐसे होता है डिले का। यहाँ पे मान लो अगर स्मार्ट, यहाँ पे आपका एक VT है। ठीक है, तो अगर देखो टाइमिंग यहाँ तक है, जैसे जैसे टाइमिंग बढ़ा रहे हैं, तो हमारा क्या हो रहा है, जो भी हमारा ये भी है VT, वो भी, ये भी है वोल्टेज है, ये भी बढ़ ही रहा है। ठीक है, तो ये स्मॉल VT है मीन्स जैसे टाइमिंग बढ़ाएंगे हमारा आउटपुट भी बढ़ते जाएगा। ये आउटपुट भी है, VT नहीं कहेंगे। ठीक है, तो ये है LVT के लिए। HVT के लिए VT ज्यादा रिक्वायरमेंट होगी। अगर मैं बात करूँ HVT के लिए, तो यहाँ पर VT यहाँ पर है। ठीक है, ये आउटपुट ही है। ठीक है, तो अगर वी नॉट वी वी नॉट वी आउट। ठीक है, तो देखो अगर मैं ये रिस्पेक्ट हुआ ऐसे बात करना, डीले का, ये एक्चुअली ग्राफ जो है ना, डीले का ग्राफ है। ये जो ग्राफ है वो डीले का ग्राफ है। मीन्स अगर टाइमिंग यहाँ पर कम है, तो यहाँ आउटपुट में डिले कितना आ रहा है? कम आ रहा है। तो ऐसे ही अगर VT ज्यादा है, तो डिले ज्यादा आ रहा है। तो ये डिले अगर ज्यादा आ रहा है, तो किसमें, HVT में आता है कि LVT में आता है? अभी मैंने आपको बताया है। अगर डिले ज्यादा आ रहा है, इट्स मीन ये क्या है? HVT। अगर डिले कम आ रहा है, तो इट्स मीन LVT। सिमिलरली ये लीकेज के लिए थोड़ा उल्टा हो जाएगा। लीकेज के लिए उल्टा कैसे हो जाएगा? क्योंकि ऐसे ग्राफ बनेगा लीकेज के लिए, नीचे से। इट्स मीन हमको पता है, अगर ये VT कम है तो हमारा लीकेज ज्यादा है। यहाँ पे LVT के लिए ज्यादा है लीकेज। ये जो ग्राफ है आपका लीकेज का, ये बस आप जानो, समझाने के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, देखो टाइमिंग LVT पे यहाँ पर है, LVT यहाँ पर है, HVT यहाँ पे है। तो कम टाइमिंग पे LVT पे देखो लीकेज ज्यादा आ रहा है, और यहाँ पर HVT मीट कर रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पे HVT में हमारा लीकेज क्या है? ये वाली लीकेज है, व्हाइट वाली, तो लीकेज कम है। तो इस ग्राफ से हम कंक्लूजन ऐसे भी निकाल सकते हैं कि मैं ऊपर ही यहाँ पे ही लिखा हूँ कि लीकेज के लिए HVT ग्रेटर देन SVT देन LVT। टाइमिंग के लिए मीन्स डिले का कम हो, तो LVT अच्छा है, SVT मीडियम वाला बीच में रहेगा, HVT उसके बाद से। और डिले के लिए मैं बताया हूँ, सबसे ज्यादा डिले किसमें होता है? HVT में होता है। क्यों? बिकॉज इसका स्विचिंग बहुत हाई फास्ट होता है, तो लीकेज वगैरह भी ज्यादा होता है इसका। ठीक है, अभी डिले में क्या है वो मैं आपको सीमॉस में वगैरह पढ़ाऊंगा अच्छे से। लीकेज हो, हाँ चलेगा ना, वही बताया हूँ सेम। क्यों हुआ है? क्योंकि स्विचिंग इसका बहुत फास्ट है। तो एच डिले जिसका हाई वोल्टेज का है, उसका लीकेज भी ज्यादा है। ये दोनों अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट नहीं, पूरे ही सेम। और टाइमिंग के मैं आगे बताऊंगा, अभी बस ये जानो, आगे मैं बताऊंगा टाइमिंग में क्यों कह रहा हूँ टाइमिंग फास्ट। टाइमिंग मीन्स फास्ट,
किसका देखो, जहां पे लेस डिले है तो ये लीकेज का ग्राफ। अच्छा अच्छा, यहाँ मैंने लीकेज की ग्राफ लिखी, ओके ओके। तो देखो ना एचवीटी कहाँ आ रहा है, जहां पे लेस डिले, डिले कहाँ लेस है, यहाँ पे लेस है, यहाँ पे लेस है कि यहाँ पे लेस है, डिले कहाँ लेस है, तुम बताओ। वहाँ- यहाँ यहाँ पे लीकेज लेस है, ठीक है। तो तो यहाँ पे लीकेज हाई आ रहा है, ग्राफ उल्टा बना दिया क्या मैंने, अगर लीकेज, एचवीटी में लीकेज, ओके ओके ओके, हाँ ओके ओके। लीकेज मतलब इम्प्रूव, ओके लीकेज, ये ग्राफ थोड़ा मैंने ये सही नहीं बनाया है। लीकेज सबसे ज्यादा किसका होना चाहिए, एलवीटी का होना चाहिए, ठीक है। एलवीटी का लीकेज सबसे ज्यादा होना चाहिए, हाँ। लीकेज विकास आप ग्राफ से ही देख सकते हो, ग्राफ से ही देख सकते हो, यहाँ पर है तो लीकेज सबसे ज्यादा एलवीटी का है, यहाँ एचवीटी का लीकेज कम है, ओके गुड। ठीक है, ग्राफ से ही आप समझ गए हो, अच्छा किया। ठीक है, तो अगर मैं लीकेज की बात करूँ तो सबसे ज्यादा लीकेज किस में आएगा, ये लो जाओ। गुड। अगर सबसे ज्यादा लीकेज सबसे ज्यादा किस में आएगा, एलवीटी, देन एसवीटी, देन एचवीटी। इट्स मीन लीकेज सबसे ज्यादा कम किस में होगा, एचवीटी। गुड। ठीक है, ये लीकेज कैपेसिटर होता है, मैं इसको डिटेल में बताऊंगा आपको सीमॉस में, अभी यहाँ आपको ये सब जानने की जरूरत नहीं है। ये कैपेसिटर का ही लीकेज होता है, इनपुट आउटपुट स्विचिंग का। ठीक है, जो आपको एसटीए के लिए है आप बस वो जानो। ठीक है, तो ये आपको ये चीजें याद रखना है। स्टैंडर्ड सेल्स जो भी जो होते हैं, ये सेल्स है बेसिकली, स्टैंडर्ड सेल है जो लाइब्रेरी में आपको मिलेंगे। लाइब्रेरी क्या होता है मैं पहले भी बताया था, बट मैं अभी भी बताऊंगा लाइब्रेरीज क्या होता है। तो ये जो सेल की प्रॉपर्टी है ना, आप अभी याद रखो, इसके बारे में ना पीएचडी करने की जरूरत अभी नहीं है, ये सब सीमॉस का पार्ट है, बट एसटीए में कहीं की यूज होता है, इसलिए मैं भी बता रहा हूँ। तो इसलिए आप इसको बस याद रखो, इसकी प्रॉपर्टी क्या है। ना तो मैंने आपको स्विचिंग बताया क्या है, लीकेज क्या है, ये सब मैं बताऊंगा, ये सब पढ़ना भी है। यस, बहुत पढ़ाया जाएगा, बट अभी जो पार्ट एसटीए के लिए रिक्वायरमेंट था वो मैं यहाँ पढ़ाना जरूरी था। ठीक है, तो आप इसकी प्रॉपर्टी याद रखना। अगर मैं आपसे पूछ दूं फिर से टाइमिंग के लिए सबसे अच्छा कौन सा सेल है इन तीनों में से, तो आप देख के तुरंत बता देना कि टाइमिंग के लिए एलबीटी सबसे अच्छा है। लीकेज के लिए सबसे अच्छा सेल्स कौन सा है, जिसमें लीकेज सबसे ज्यादा चाहिए हमको, लीकेज कम चाहिए होता है, लीकेज चाहिए होता है कम चाहिए होता है कि लीकेज थोड़ा कम करे, तो सबसे अच्छा लीकेज के लिए कौन सा रहेगा, एचवीटी। तो एक कंक्लूजन यहाँ बना लेते हैं। ठीक है, टाइमिंग मतलब क्या, फास्ट। अभी विश्वनाथ पूछ रहा था ना, तो व्हाट इज द मीन बाय द टाइमिंग सर, टाइमिंग इट्स मीन वी हैव टू, वी वांट फास्ट ट्रांसफर ऑफ द डेटा। इट्स मीन फॉर टाइमिंग, फॉर गुड टाइमिंग, फॉर गुड टाइमिंग, फॉर गुड टाइमिंग सबसे अच्छा कौन सा होगा, एलवीटी। एसवीटी में स्टैंडर्ड वाला है, वो बीच वाला है, ठीक है, उसका ध्यान मत देना उतना, बट याद रखना उसको भी है। एंड फॉर गुड लीकेज कौन सा अच्छा होगा, एचवीटी। एचवीटी में लेस लीकेज होता है। चलो एरिया के बारे में भी बता देता हूँ थोड़ा, एरिया कैसे डिपेंड करेगा, एरिया का क्या रिलेशन होगा। तो एरिया में आप यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, एरिया का रिलेशन बहुत कुछ खास नहीं है, इक्वल ही है एक्चुअली। अगर एरिया की मैं बात करता हूँ, ये सब कैसे इक्वल है नॉट इक्वल है ना, वो मैं एनालॉग बताऊंगा। अगर एरिया की बात करूँ कि सर एरिया किसका सबसे ज्यादा हो या कम है, तो सभी के एरिया ना सेम होते हैं। अगर कोई एरिया पूछ ले तो आपसे, तो एरिया के इन टर्म में सभी के एरिया सेम, बस ये याद रखना। चलो अब देखते हैं कि हम सेटअप वायलेशन कैसे इनरिप करेंगे, क्या क्या मेथड्स है। गुड लीकेज मीन्स आप चाहते हो लीकेज ज्यादा हो कि कम हो, कम। गुड लीकेज मीन्स कम लीकेज। चलो लेस लिख देता हूँ यहाँ पे, अभी बाद में आप दोहराओ लेक्चर तो आपको पता चल जाए, बाद में अगर लेक्चर आप सीन करो तो।
ओके, तो ये रहा हमारा स्टैंडर्ड सेल्स के बारे में। ये जो स्टैंडर्ड, ये सब इसको स्टैंडर्ड सेल्स नहीं कहते हैं, इसको इसलिए सेल्स कहते हैं। इनकी क्या होती है ना, लाइब्रेरी होती है। लाइब्रेरी में हम क्या होता है, एक फाइल होता है, तो इसको हम लिव फाइल कहते हैं, डॉट लिव फाइल कहते हैं, डॉट लिव फाइल कहते हैं, इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं लाइब्रेरी फाइल को। इसके अंदर क्या होता है ना, एलवीटी सेल्स वगैरह होते हैं, एचवीटी सेल्स वगैरह होते हैं, एसवीटी होते हैं, यूएलवीटी होते हैं। ठीक है, ये क्या है यूएलवीटी, अल्ट्रा लो वोल्टेज, अल्ट्रा लो थ्रेशोल्ड वोल्टेज, यू। ठीक है, अगर अल्ट्रा लो कर देगा टाइमिंग और ज्यादा इंप्रूव हो जाएगा। चलो यहाँ पे ही बता देता हूँ एक सब। चलो अल्ट्रा अगर लो मैंने कह दिया, तो लो वोल्टेज तो वही है, लेकिन अल्ट्रा मीन्स क्या है, और नया वर्जन। अभी सुने हो ना, मोबाइल आता ही रहता है ऐसे, अल्ट्रा वीवो, कॉमन वीवो, नॉर्मल वीवो, अल्ट्रा प्रो, तो ये अल्ट्रा ही है, मीन्स और ज्यादा इंप्रूवमेंट वाला है। ऐसे बहुत सारे सेल्स होते हैं लाइब्रेरी में। तो जो भी हमको टाइमिंग वगैरह फिक्स करना होता है ना, तो इसी में से हम उठा लेते हैं, सेल्स बने रहते हैं। ये बेसिकली सेल्स होते कि हाँ, तो ये गेट्स होते हैं, लॉजिक गेट्स होते हैं। अभी ज्योति पूछ रहा था ना, आई थिंक क्या होते हैं सेल्स, ज्योति तुम पूछ रहे थे। तो ये बेसिकली गेट होते हैं, लॉजिक गेट्स होते हैं। ठीक है, बट ये नॉर्मल नहीं होते हैं, इसमें देखा जाता है राइजिंग टाइम, फॉल टाइम, ठीक है, कैपेसिटेंस देखा जाता है, ठीक है, इनपुट कैपेसिटेंस, आउटपुट कैपेसिटेंस, ये सब मिल इसके अंदर होते हैं। ठीक है, तब एक सेल्स बनता है, वो मैं बताऊंगा। बट समझ लो एक लॉजिक गेट्स होते हैं सेल्स मीन्स। ठीक है, तो लाइब्रेरी का कहने का मतलब यही है कि एक फाइल है जिसमें ये सभी सेल्स वगैरह प्रेजेंट रहते हैं। अगर हम यूज करना चाहते हैं तो डायरेक्ट इस फाइल से हम पिकअप कर लेते हैं। अब इसको कैसे यूज करना है आगे देखना है। Now we are going to discuss how we can improve the setup and organization in our daily life. डेली लाइफ इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप जब कंपनी में आओगे तो इसे यूज करना सीखोगे। चलो एक क्वेश्चन लेता हूँ, क्वेश्चन के थ्रू हम समझेंगे कि कैसे हम समझेंगे कि हमारा सेटअप वायलेशन हो रहा है कि होल्ड वायलेशन हो रहा है। चलो एक क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पे। एक मैं आपको फिगर ड्रॉ कर रहा हूँ, उसके थ्रू हम समझ लेंगे कि कैसे हम उसको रिमूव करते हैं सेटअप एंड होल्ड को। ये रहा हमारा एक डब्बा, ये रहा हमारा दूसरा डब्बा। ये डब्बे का मीनिंग क्या है, पहले डब्बे का मीनिंग क्या है, क्या कहते हैं पहले डब्बे को, लॉन्च फ्लॉप। इसको कौन सा फ्लॉप कहते हैं, कैप्चर। ये भी एक लाइब्रेरी में होता है, जो भी ये फ्लॉप वगैरह होते हैं ना, लाइब्रेरी में मेंशन होते हैं, तो आपको बनाना नहीं पड़ेगा, आप लाइब्रेरी से पिकअप कर लोगे। ठीक है, जब आप आओगे काम वाम करने तो आपको पता चल जाएगा, आपको ऐसे बार बार बनाने नहीं पड़ेंगे। ये सब स्टैंडर्ड होते हैं जो लाइब्रेरी में मेंशन होते हैं। ये रहा हमारा डेटा पिन, यहाँ पे हम अपना कॉम्बो लगा देते हैं, और ये कॉम्बिनेशन लॉजिक है। ठीक है, कॉम्बिनेशन लॉजिक है, इसके अंदर आप चाहो तो मल्टीपल गेट बना दो, चाहे कुछ भी कर। अगर कॉम्बिनेशन लॉजिक को आपको मैं दिखाऊं कैसे, अगर देखना चाहो तो कैसे सर होगा, अगर आप डेली लिख देते हैं कॉम्बिनेशन लॉजिक होता है क्या है सर, आप ये बता दो, वो मैं आपको भी दिखा दे रहा हूँ, ये दिखते कैसे। ये रहा आपका क्लॉक। अगर ये कॉम्बिनेशन लॉजिक अगर मैं आपको तोड़ के दिखाऊं ना, कि अगर मैं बनाना चाहूँ तो कैसे बनेगा, तो समझ लो ये हमारा सेल्स है, ये एक इनपुट जा रहा है, जैसे मतलब हमारा नैंड गेट है, एक बफर से जा रहा है। ठीक है, फिर ये हमारा एक गेट्स है। ठीक है, फिर ये कनेक्ट हो जा रहा है इससे, ये कनेक्ट हो जा रहा है इससे, और ये कनेक्ट हो रहा है इधर वाले से, ये हमारा प्रोटीन है। ऐसे मतलब कोई भी कॉम्बिनेशन लॉजिक हो सकता है, ये भी है, हो सकता है मंक्स वगैरह कुछ भी हो सकता है। कॉम्बो मैंने जो आपको पढ़ाया है वो सभी हो सकते हैं इसमें, तो जस्ट मैंने लिख दिया है कॉम्बो लॉजिक। अब मैं आपको बताऊं डिले वगैरह मैं कुछ दे देता हूँ ताकि थोड़ा बहुत आ सके, वायलेशन वगैरह आ सके, कौन सा वायलेशन आएगा उससे हम दे सकते हैं। अगर मैं आपको इसका डिले दे दूं आपको 0.7 नैनो सेकेंड्स,
ठीक है। और आपको मैंने दे रखा है यहाँ पे टी क्लॉक मैं दे दिया हूँ, टी क्लॉक 1 नैनो सेकेंड्स। सिमिलरली TCQ, ये TCQ का फुल फॉर्म क्या है? क्लॉक टू क्यू डिले। ठीक है, कॉम्बो का दे रखा हूँ तो कॉम्बो का लिखने की आई थिंक जरूरत नहीं है। अगर मैं इस क्यू दे दूं, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, इस क्यू ही लिख दे रहा हूँ। अगर मैं इस क्यू लिख दूं यहाँ पे कितना है तो 0.25 नैनो सेकेंड लिख दिया। ठीक है, यहाँ पे इस क्यू लिखेगा या तो बफर वगैरह बना देगा, तो घबराना नहीं है उससे। और अगर मैं लिख दूं यहाँ पे, और क्या दे सकता हूँ, टी सेटअप देना ही पड़ेगा। टी सेटअप दे दूं वो लगभग 100 पिको सेकेंड, मीन्स क्या है ये, कितना है ये? 0.1 नैनो सेकेंड। अब आपको चेक करना है ना कि इसमें सेटअप वायलेशन है कि नहीं है इस सर्किट। सो सेटअप वायलेशन चेक करने के लिए क्या होना चाहिए, क्या कंडीशन होता है सेटअप वायलेशन चेक करने की? जो भी आपको मैंने कंडीशन बताया था, जो भी हमारा टी रिक्वायर है, ठीक है, वो ज्यादा होना चाहिए कि कम होना चाहिए? किससे? टी 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 डी मीन्स वही टी डेटा पाथ। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होता है तो ठीक है, अगर नहीं होता है तो हमारा सेटअप वायलेशन है। बट अगर स्लैक की मैं बात करूं, ऐसे ही स्लैक भी नहीं, सेटअप स्लैक, तो सेटअप स्लैक का क्या हो जाएगा? टी रिक्वायरमेंट माइनस टी डेटा। तो ऐसे आप देख भी सकते हो कि कितने का वायलेशन हो रहा है। तो अगर मैं देखूं तो कितना का वायलेशन हो सकता है? क्लॉक कितना है आपका? कहाँ गया क्लॉक? क्लॉक मैंने नहीं दे रखा है क्या? ऊपर है, 1 नैनो सेकेंड है। ठीक है, टी रिक्वायर्ड प्लस क्या आता है टी रिक्वायर्ड में? इस क्यू कितना है? 0.25। इससे माइनस कितना होता है? सेटअप कितना है? 0.1 माइनस का टी डेटा में क्या आएगा? टी सी क्यू 0.1 प्लस कॉम्बो कितना है? 0.6। तो अगर कैलकुलेशन किया जाए तो ये कितना आ सकता है? कितना आ रहा है कैलकुलेशन करने पे? ये 1.25 और 0.1 घटा दो तो कितना आएगा? 1.15। चलो ठीक है, थोड़ा सा मैं और बढ़ा देता हूँ और अच्छे से आपको समझ आ जाए। तो इसको बढ़ा दें, टी क्लॉक को चलो ले लेते हैं 4। पहले से आना चाहिए, बस इसलिए ले रहा हूँ। टी क्लॉक हो गया पूरा, ऐसे भी आएगा। अगर मैं इसको 4 लेता हूँ तो कितना होगा? 4.25। 4.25 में से 0.1 घटाओगे कितना हो जाएगा? 4.15। ठीक है, माइनस का 0.8। ओहो, ठीक है, तो यहाँ पर वैल्यूएशन नहीं आएगा, तो वैल्यूएशन बनाना है हमको एक्चुअली। ठीक है, इसमें वैल्यूएशन नहीं आएगा। वैल्यूएशन कब आता है, क्या कंडीशन होती है? वैल्यूएशन आने की कंडीशन क्या होती है? नेगेटिव होना चाहिए। बट यहाँ पे पॉजिटिव है तो आप बता देना कोई वैल्यूएशन नहीं, तो आप चेक भी मत करना कि यहाँ पर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर मैं इसको 1 ही रखता हूँ तो 1 के लिए वैल्यूएशन आएगा। देखते हैं आता कि नहीं आता है। 1 के लिए भी नहीं आ रहा ना? हाँ, 0.5 कर लेते हैं तो वैल्यूएशन आ जाएगा। जस्ट ये मैं क्वेश्चन मेड कर रहा हूँ वैल्यूएशन लाने के लिए, और कुछ बात नहीं। अगर 0.5 नैनो सेकंड ले लिया जाता है यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा ये? यहाँ पे माइनस का 0.4 हो गया, कितना हो जाएगा? ये कितना होगा? 0.6। अरे 7.5 कैसे होगा यार? 6.5। ठीक है, अब एक्चुअल आंसर कितना आएगा आपका? माइनस का 0.15। इट्स मीन यहां से आप देख लो स्लैग मीन्स निगेटिव है। ठीक है, स्लैग निगेटिव है। अगला लिख देता हूँ यहाँ पे आंसर, यहाँ से अच्छे से जो भी हमारा सेटअप है स्लैग है
कितना है, माइनस का है 0.15 नैनो सेकंड। अगर माइनस आया है तो मैं पहले बताया हूँ, अगर पॉजिटिव है क्या है, माइनस चिन्ह क्या है। सो इट्स मीन यहाँ पर क्या है, वायलेशन, सेटअप वायलेशन है। माइनस इंडिकेट करता है कि यहाँ पर है हमारा वायलेशन, वायलेशन। अब इसको रिमूव करना है कि वायलेशन कैसे हो रिमूव होगा, हाउ वी कैन फिक्स द वायलेशंस। सो मैं आपको अभी दो तरीके बताया हूँ। पहला आरटीएल डिजाइन, कि सेटअप को आरटीएल डिजाइन कैसे फिक्स करता है, आरटीएल डिजाइन इंजीनियर कैसे फिक्स करता है सेटअप को। जो भी आरटीएल डिजाइन होता है ना, जो भी कोड वगैरह होता है ना आपका, वेरिलॉग कोड, सिस्टम वेरिलॉग कोड, जैसी कोड जो भी होता है ना, आपका आरटीएल डिजाइन ही लिखता है। तो डिजाइनर के पास जो भी होता है ना, इतना होता है कि वो डिजाइन को चेंज कर सकता है। ठीक है, तो आर्टिकल डिजाइन क्या करता है, अगर उसको बोला जाएगा कि सेटअप वायलेशन कैसे रिमूव करोगे, तो वो क्या करता है ना, अगर देखो इसी के बीच में वायलेशन आ रहा था, ध्यान से देखना, ध्यान से। अगर देखो मैं एक आर्टिकल डिजाइन इंजीनियर हूँ, चाहे आप एक आर्टिकल डिजाइन इंजीनियर हो, एक्चुअली मैं हूँ आर्टिकल डिजाइन इंजीनियर। ठीक है, आप बनोगे, आप आर्टिकल बनोगे कि पीडी बनोगे, वो आपका किस्मत डिसाइड करेगा। ठीक है, अगर एक आर्टिकल डिजाइन इंजीनियर इसको फिक्स करना सोचे कि हम कैसे सेटअप वायलेशन फिक्स करेंगे, तो क्या रिक्वायरमेंट क्या था हमारा। देखो हमारा रिक्वायरमेंट यही था कि जो भी हमारा टी रिक्वायर्ड था, टी रिक्वायर्ड पे चलो बोल जाओ, मान लो जो भी हमारा ये डेटा था, अगर ये क्लॉक है, सेकंड वाला क्लॉक है, तो जो भी हमारा डेटा था इसके पहले क्या हो जाए, स्टेबल हो जाए। बट इसमें क्या हुआ, माइनस आ गया, इट्स मीन जो भी हमारा डेटा जा रहा है वो कहीं इधर जा रहा है, यहाँ तक पहुंच रहा है। मतलब जो भी हमारा टी रिक्वायरमेंट था ग्रेटर देन टी डेटा से, वो पूरा नहीं हुआ है। इट्स मीन डेटा ज्यादा हो गया है और रिक्वायरमेंट कम हो गया है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। स्लैक किसकी वजह से आया है, हमारा जो कंडीशन था यही कंडीशन था ना, जो कि हमारा टी रिक्वायरमेंट ग्रेटर होना चाहिए टी डेटा से। बट अगर निगेटिव आ गया है, इट्स मीन वी हैड violate these conditions. It's mean our data path is more than the data requirement path. Got it my point? Are you getting my point? So देखो आर्टिकल डिजाइन क्या करता है, अगर हमारा डेटा पाथ ज्यादा आ रहा है तो इसको कम करने की कोशिश करेगा, तभी तो ये रिक्वायरमेंट पूरा होगा, तभी तो हमारा ये बिफोर द क्लॉक डेटा मस्ट बी स्टेबल होगा। बट कंडीशन हमारा ये सेटिस्फाई नहीं हो रहा था, तो हम चाह रहे थे डेटा ना इसको कम किया जाए, तब जाके ये सेटिस्फाई हो। क्योंकि अभी स्लैग आ रहा है, इट्स मीन ये ज्यादा आ रहा है, टी डेटा ज्यादा आ रहा है, तो इसको कम करने के लिए हम कैसे मेथड लगा सकते हैं। तो जो भी एक मेथड, पहला मेथड है जो आर्टिकल डिजाइन क्या कर सकता है, आर्टिकल डिजाइन क्या करता है ना, ये जो कॉम्बो लॉजिक होता है ना यहाँ पे, इसको ब्रेक कर देता है, इसको ब्रेक कर देता है। ठीक है, ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूँ, जो भी हमारा ये कॉम्बो लॉजिक है इसको ब्रेक कर देता है, और ब्रेक करके क्या करता है ना, एक फ्लॉप लगा देता है। तो अगर मैं आपको फिगर बना के दिखाऊं कि कैसे ब्रेक करके फ्लॉप लगाएंगे, और पीडी इंजीनियर कैसे करता है, फिजिकल डिजाइन क्या करता है, वही मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो बेसिकली क्या करता है, फर्स्ट फर्स्ट मेथड क्या है इसको रिमूव करने का, अगर मैं एक आरटीएल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो, एक आर्टिकल डिजाइन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो, ये रहा हमारा कैप्चर और लॉन्च फ्लॉप। ठीक है, ये रहा हमारा लॉन्च और ये हमारा रहा कैप्चर। अब जो भी हमारा कॉम्बो आ रहा है, क्या कर रहे हैं ना, उसको हम ब्रेक कर दे रहे हैं। ठीक है, एक T1 पार्ट में और एक T2 पार्ट में ब्रेक कर दे रहा है, और उसके बीच में ना एक फ्लॉप लगा दे रहा है। बेसिकली ये हमारा था इनिशियल, ये हमारा लॉन्च एंड कैप्चर था इनिशियल वाला। तो आर्टिकल डिजाइन इंजीनियर क्या करता है, जो भी ये आपका कॉम्बो है ना, इसको ब्रेक करके क्या करता है ना, फ्लॉप ऐड कर देता है, एक फ्लॉप ऐड कर देता है, उनके बीच में ना एक फ्लॉप ऐड कर देता है।
इसको ब्रेक करके कॉम्बो को अलग अलग कर देता है। अगर मान लो इस देखो देखो आगे बता रहा हूँ, बिल्कुल को आगे बता रहा हूँ। ठीक है, अभी देखो क्या करते हैं, आगे मैं बताऊंगा इसमें एडवांटेज में डिसएडवांटेज में। अगर मान लीजिए टाइमिंग था आपका, कितना था ये टाइमिंग, आ जाओ पीछे देख लो कितना हम रखे थे इसको, कितना था 0.7 था ये टाइमिंग, प्रॉपर टोटल कितना था 0.7 नैनो सेकंड था। अब हम इसको ब्रेक करके आधा आधा कर दिए, तो T1 का ले लिए 0.35, इसको भी ले लिए 0.35। इट्स मीन हम कॉम्बो को ना ब्रेक करके फ्लॉप लगा देंगे। अब जो फ्लॉप लगाए ना उसको भी ऐसे करते हैं ना, क्लॉक सेम ही रहता है। अब देखो, अब ये लॉन्च है तो ये क्या बन गया, कैप्चर, ये बन गया कैप्चर। ठीक है, इसका कलर वगैरह चेंज हो जाएगा क्या, कलर चेंज होगा बाद में, आपको समझने में नहीं आता कैसे चेंज करते हैं क्या। इसका मैं जस्ट कलर चेंज कर रहा हूँ ताकि आपको क्लियर व्यू पता चले कि कैसे होगा। ये थोड़ा अलग कलर में बना रहा हूँ, तो इन फ्यूचर आप देखो बाद में तो आपको अच्छे समझ में क्या है सर ये। अच्छा लगा, ठीक है, एक फ्लॉप बीच में ऐड करनी है। तो अब ये लॉन्च है तो ये इसके लिए कैप्चर बन गया, और इसके लिए क्या है, ये लॉन्च है तो ये कैप्चर बन गया। ठीक है, तो आइदर लॉन्च बन सकता है और कैप्चर बन सकता है। अब देखो, अब टाइमिंग आपकी आराम से फिक्स हो जाएगी। अगर आप इन दोनों के बीच में पाथ में देखोगे तो कोई सेटअप आएगा इनके और इनके बीच में, नहीं आएगा, क्योंकि क्योंकि डेटा पाथ ही ज्यादा हो रहा ना, तो हम उसको कम कर दिए, फ्लॉप ऐड करके क्या कर दिए, कम कर दिए। सिमिलरली अब इसके डेटा पाथ में चेक करोगे तो भी नहीं आएगा, तो ओवरऑल भी नहीं आ रहा है। तो मैं आपको इनिशियली बताया था कि हम टाइमिंग चेक करते हैं तोड़ तोड़ के पार्ट में, वी हैव टू डिवाइड इट इनटू द 4 पार्ट, रेस टू आउटपुट, इनपुट टू रेस, आउट इनपुट टू आउटपुट। तो ये कौन सा वाला पार्ट है, एनीवन, ये कौन सा वाला पार्ट हम ब्रेक कर रहे हैं, रजिस्टर टू रजिस्टर, आर टू आर्ट वाला पार्ट ब्रेक कर रहे हैं। तो इसके बीच में टाइमिंग ऐसे चेक कर लेंगे तो हमारा सेटअप वैल्यूएशन भी रिमूव हो जाएगा। समझ में आया सबको, हम फ्लॉप कैसे ऐड करके हम रिमूव कर दिए हैं। देखो टोटल था हमारा 0.75 डेटा में, डेटा पाथ में, क्या डेटा पाथ ही ज्यादा आ रहा था तो इसको कम करने के लिए क्या किए, ब्रेक कर दिए। तो अगर अब ब्रेक कर दिए हैं तो अगर अब हम निकालते हैं तो देखना भी इजीली आ जाएगा, आप निकाल के चेक करो। इसका जरा बताओ तो सेटअप वैल्यूएशन कितना आ रहा है, कितना आ रहा है, इसमें कोई वैल्यूएशन आ रहा है क्या, इसमें और इसमें डेटा सब कुछ सेम है, इसमें निकाल के देखो, चलो निकाल के देख लेते हैं आपके सामने। कंडीशन क्या होना चाहिए कि ना है, टी रिक्वायरमेंट ज्यादा होना चाहिए टी डेटा से। अब चेक करो रिक्वायरमेंट कितना आ रहा था, उसमें तो चेंज होगा नहीं रिक्वायरमेंट में, पीछे देख लेते हैं रिक्वायरमेंट कितना आ रहा था हमारा टोटल 0.65, ये तो चेंज नहीं होगा। अगर वही डेटा लेते हैं तो 0.65, अब ये देखो ज्यादा है कि टी डेटा कितना हो जाएगा, ये क्लॉक टू क्यू कितना था, चेक इट हियर, क्लॉक टू क्यू कितना था 0.1, 0.1, और अब कॉम्बो कितना बन गया है आपका 0.35, हो गया, कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। इट्स मीन देयर इज एनी सेटअप वायलेशन और नॉट, इज देयर एनी सेटअप वायलेशन, नो, बिकॉज आवर कंडीशन इज सेटिस्फाइड। सो कॉम्बो लुक का एक आर्टिकल डिजाइन क्या करता है ना, थोड़ा डिजाइन को ही चेंज कर देता है, बट इससे थोड़ा डिसएडवांटेज भी है, थोड़े नहीं काफी डिसएडवांटेज है, क्या है मैं आपको बता रहा हूँ। बट ये तरीका भी कर सकते हैं, कब कर सकते हैं वही मैं बता रहा हूँ। तो पहला मेथड क्या हो गया, ब्रेक कम्बो। अगर मैं थोड़ा कलर चेंज करके लिखता हूँ, ठीक है, जो आज लेक्चर नहीं कर रहा ना वो पछताएगा ही। वैसे पहला मेथड क्या है, ब्रेक द कम्बो, ये किसके पॉइंट ऑफ व्यू से, आरटीएल और पीडी, आरटीएल डिजाइनिंग करता है, कॉम्बो को ब्रेक कर देता है, क्योंकि पीडी के पास डिजाइन का नॉलेज नहीं होता है, जो भी डिजाइन बन के आता है पीडी को नहीं पता हो कि कैसे बनेगा कैसे नहीं बनेगा। तो आरटीएल डिजाइन इंजीनियर इसको बहुत अच्छे से जानता है, वो इसको चेंज कर सकता है।
बट इसमें क्या है, आप ये देखो, थोड़ा डिसएडवांटेज एक्चुअली इसमें क्या है। देखो, अगर हम ये फ्लॉप नहीं लगा रहे थे तो सेटअप वैल्यूएशन आ रहा था, बट जो भी हमारा डेटा मिल रहा था ना, वो एक साइकिल डिले में मिल रहा था। एक साइकिल डिले में मिल रहा, मान लो अगर डेटा यहाँ मिल रहा था तो यहाँ से जो डेटा आ रहा था ना, इसी साइकिल की वजह से आ रहा था। बट अगर फ्लॉप लगा दिए हो यहाँ पे, तो अब जो आउटपुट डेटा आएगा कितने साइकिल में आएगा, 2 साइकिल में। जब मैं आपको इनिशियल बताया था ना कि एक डी फ्लॉप का क्या होता है, डी फ्लॉप कितने साइकिल को चेंज करता है, एक डी फ्लॉप एक साइकिल डेटा चेंज कर देता है। तो यहाँ पे 2 लगे हैं, तो आउटपुट में कितना चेंज आ जाएगा, 2 साइकिल का चेंज आ जाएगा। इट्स मीन जो डेटा हमको मिलने चाहिए थे, हमारा डिजाइन, इसके आगे भी डिजाइन होगा ना भाई, इसके आगे भी डिजाइन होता है, यहाँ तक खत्म नहीं है, इसके आगे भी डिजाइन है, बहुत सारे डिजाइन होते हैं। तो अगर हमको डेटा ये वाला चाहते थे, हमारा डेटा इस फ्लॉप पे, इसके आगे वाले फ्लॉप पे पहुंचे 5 नैनो सेकंड पे, तो ये डिले की वजह से ना 7 पे पहुंच जाता है। तो ये भी थोड़ा डिसएडवांटेज है, क्योंकि हम चाहते थे जो अगला सर्किट काम कर रहा है, इसके बाद जो सर्किट लगा हुआ है, इधर में बहुत सारे सर्किट लगे होते हैं, ठीक है, ये छोटा नहीं है। तो ये जो सर्किट हम चाहते थे 5 पे काम करेगी, बट डिले की वजह से 7 पे काम कर रहा है। तो ये सर्किट भी हो सकता है खराब हो जाए, टाइमिंग चेक करना पड़ेगा, इसका भी चेक करना पड़ेगा। ऐसे बहुत सारे करने पड़ जाएंगे, फिर बहुत आगे मिलियंस नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स होते हैं, गेट्स होते हैं। इसलिए थोड़ा डिसएडवांटेज ही हो गया फ्लॉप लगाने से। बट कहाँ लगा सकते हैं सर, अगर देखो, अगर ये जो फ्लॉप है ना वो लास्ट आउटपुट हो, मीन्स इसके बाद से अगर कोई हमारा सर्किट ऐड ना हुआ हो, मीन्स फाइनल है, तो हम ये वाला कर सकते हैं। बट कंप्रोमाइज करना पड़ता है एक्चुअली, एरिया भी बड़ा हो जाता है। देखो, डिसएडवांटेज क्या क्या होगा, एरिया भी बड़ा, 2 साइकिल का डिले भी आ गया, ठीक है, तो ये डिसएडवांटेज है। बट क्या होता है, कभी कभी हम सर्किट से एरिया से कंप्रोमाइज कर लेते हैं, और हम क्या करते हैं, टाइमिंग हमारा सही रहे, हम ये चाहते हैं। फिर से याद दिलाऊंगा आपको, बार बार याद दिलाऊंगा, पीपीए, पीपीए, पावर परफॉर्मेंस एरिया। हम एरिया से कंप्रोमाइज कर सकते हैं, पावर हमको अच्छा चाहिए, पावर और स्पीड रिलेशन होता है एक दूसरे से, अच्छा चाहिए। अगर आप चाहते हो नहीं मेरा एरिया कम चाहिए, हम पावर से नहीं, स्पीड से हम कंप्रोमाइज कर सकते हैं, तो ये मेथड नहीं यूज करना है। तो डिजाइन के ऊपर होता है कि हम कौन सा मेथड यूज करना चाहते हैं। तो पहला मेथड ये होता है, हम सेटअप को रिमूव कर सकते हैं। बट इसमें क्या क्या डिसएडवांटेज है वो आप जान जाओ, इसको पॉइंट बना के लिखते हैं ताकि, अरे बिल्कुल तोड़ सकते हैं यार। एक आपने एक में किया है आप, अरे कितना हो जाए भाई, तुमने एक किया है, 2 3 और लगा दो आगे, समझ गए, बिल्कुल लगा दो यार, जितना बड़ा कॉम्बो रहेगा, जितना डिजाइन मीट हो जाए। तो 2 साइकिल के डिले की जगह पे कितना साइकिल डिले हो जाएगा, आप जितना लगाओगे उतना हो जाएगा। आर यू गेटिंग, बिल्कुल। बट उससे डिसएडवांटेज है, आपको मैं बताया हूँ। तो डिसएडवांटेज क्या है, नोट कर लो, नोट डाउन। देखो, जो नोट्स नहीं बना रहा ना वो पिटाई खाएगा, कि अगर मैं कभी चेक कर लिया तो, क्योंकि अभी निखिल नोट्स मांग रहा था। निखिल, हो यहाँ पे, चला गया क्या, ठीक है, तुम्हारा चेक करता हूँ। इसका नोट नोट डाउन कर लेना, ठीक है। थोड़ा डिसएडवांटेज भी है, अगर आरटीओ आप यूज कर रहे हो ना, तो थोड़ा डिसएडवांटेज हो सकते हैं, और ये एडवांटेज भी है। अगर परफॉर्मेंस से और स्पीड से आप कंप्रोमाइज कर सकते हैं। पहला क्या है कि साइकिल डिले, कितना साइकिल डिले है वो आप, तो आप पे डिपेंड करता है कि आप एक फ्लॉप लगा रहे हैं कि 2 फ्लॉप लगा रहे हैं। तो ऐसे लिख दूं तो साइकिल डिले लिख देता हूँ, कितना साइकिल ये नहीं लिख पा रहा हूँ, साइकिल डिले, ठीक है, डिपेंड अपॉन फ्लिप फ्लॉप। सेकंड क्या है, अभी किसी ने बोला एरिया, एरिया बढ़ जाएगा ना जितना आप लगाओगे, तो ये इसके डिसएडवांटेज है। बट इससे आपका सेट ऑफ वायलेशन रिमूव हो जाएगा। ये कौन करता है, हम करते हैं, आरटीएल डिजाइनिंग नहीं करता है, आरटीएल नहीं करता है। जो आरटीएल लिखता है, कोड लिखता है, क्योंकि उसके पास होता है, वो चेंज कर सकता है। सेकंड चीज, और कैसे रिमूव कर सकते हैं, ठीक है, कॉम्बो सही एक्चुअली खेलते हैं, क्योंकि डेटा पाथ से हमको छेड़खानी करने हैं,
पता है ना आपको सेटा वायलेशन क्या होता है? बिफोर द राइजिंग ए डेटा मस्ट बी स्टेबल। तो हमारा डेटा पाथ कम ही करना है एक्चुअली। तो कम करने का एक ही मेथड है, आप डेटा पाथ को ही सिर्फ छुओ, सिर्फ डेटा पाथ को ही टच करो। तो डेटा पाथ को और कैसे टच कर सकते हैं? अगर सपोज लो ये तो कम्बो मान लो अगर ऐसे मिल गया, कोई गेट्स वगैरह से मिल गया तो आप हटा दिए। एक इसको ही क्या कहते हैं ना, पाइपलाइनिंग भी कहते हैं। जो ब्रेक द कम्बो मैंने कहा है ना, इसको ही कुछ लोग पाइपलाइनिंग भी कहते हैं। तो पाइपलाइनिंग में तुम क्या होता है, पाइपलाइन करना मतलब फ्लॉप लगाना। बिटवीन द टू मॉड्यूल वी हैव टू इंसर्ट एनी फ्लॉप्स, ठीक है, तो उसे हम पाइपलाइनिंग भी कहते हैं। तो कभी कभी ब्रेक द कम्बो को भी कुछ लोग पाइपलाइनिंग भी कहते हैं इस मेथड। तो आप पाइपलाइनिंग भी कह सकते हैं, लिख दो यहाँ पे पाइपलाइनिंग। जो आप याद करो चलेगा, मुझे कंसेप्ट चाहिए एक्चुअली, ठीक है। आप इसको कुछ भी याद करो, आई डोंट केयर, बट मुझे कंसेप्ट चाहिए कि है क्या कंसेप्ट। मुझे नाम से मतलब नहीं है, बट मुझे कंसेप्ट चाहिए आर्टिल डिजाइन कैसे करता है। बट आपके नेम के लिए मैं बता रहा हूँ, ब्रेक द कम्बो इज ऑल्सो कॉल्ड द पाइपलाइनिंग मेथड्स। अब देखो और क्या कर सकते हैं सर, और किस टाइप का आ सकता है, आर्टिल कैसे चेंज कर सकते हैं, आर्टिल डिजाइन और क्या कर सकता है। इसको एक डब्बे में बंद करता हूँ, लग नहीं रहा कि आज हो पाएगा, कोई बात नहीं। आपको मैं डीप ले जा रहा हूँ, आप डीप जाओ, बाद में गलत नहीं करके आना है। अगर इंटरव्यू में मैं पूछ लूँ आपसे तो टूटे जाओगे फिर। मॉक इंटरव्यू एसटीए के बाद एक रखूंगा, ठीक है, तब तक डिजिटल भी हो जाएगा। समझ लो एक मेथड और होता है, सेकंड मेथड, ठीक है, मक्सिंग मेथड। इसको भी कहीं कहीं पाइपलाइनिंग मेथड लिखा जाता है, मक्सिंग मेथड, मक्सिंग मेथड। ये अभी आर्टिकल डिजाइन के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ। मक्सिंग मेथड, मक्सिंग मेथड क्या है सर? मक्स मतलब मक्सिंग में कुछ आ रहा है डिजिटल का, मक्स आ रहा है, ये कॉम्बो का ही है। तो समझ लो अगर आपके पास, फिर से मैं फ्लॉप ही बना रहा हूँ जो हम बनाए थे पिछली बार। ये रहा फ्लॉप एक, आजा भाई एक और आजा, ये रहा फ्लॉप, ठीक है। वही सेम अपना डेटा पेश करो, क्योंकि कॉम्बो में बहुत टाइप के हो सकते हैं। कॉम्बो में सिर्फ लॉजिक गेट्स नहीं आते हैं, डिकोडर इनकोडर मक्स वगैरह सब आ सकते हैं, ठीक है। देखो अगर क्या है, यहाँ पे बहुत सारे मक्स हैं, अगर बहुत सारे यहाँ मक्स होते हैं, ठीक है, बहुत सारे मक्स कनेक्ट होते हैं, ये भी बिकॉज एक कॉम्बो ही होते हैं, ठीक है। डॉट 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 कर दे रहा हूँ, ठीक है, इट्स मीन बहुत सारे, ये नहीं पूछना कितना, ठीक है। यहाँ पे मान लो यंग मक्स है, बहुत सारे हैं, ये भी कॉम्बो के पार्ट हो गए हैं, ये भी कॉम्बो के पार्ट हो गए। इसमें क्या कैसे करते हैं, अगर ऐसा आ जाए सर्किट आपको, अगर कॉम्बो कॉम्बो के लिए कोई मक्स वगैरह आ जाए, तो इतने सारे यहाँ सेलेक्ट लाइन भी होते हैं एक्चुअली सारे, ठीक है। इसमें हो सकता है कोई गेट वगैरह लगा हो। अगर इस टाइप की सर्किट आ जाए ना, तो इसको क्या कहते हैं, मक्सिंग मेथड कहते हैं। इसको क्या करो, इतने सारे गेट्स लगा, मक्स लगाने की जरूरत नहीं है। आप इसको एक मान लो ये 4x1 के मक्स हैं सभी, तो आप इसको ना रिप्लेस कर दो 8x1 से, या 12x1 से, जैसा आप निकालो। तो इन सभी को क्या करना है ना, एक से रिप्लेस कर देना है। इससे फायदा क्या मैं बता रहा हूँ, इन सभी को एक ही इनपुट लगाओ, सेलेक्ट लाइन डिफाइन कर दो, और इसमें एक जहां आ रहा है उसका आउटपुट लेके लगा दो। तो इसको ऐसे चेंज कर देना। इसको ऐसे चेंज करने से क्या है, आपको मैंने बताया था ना कि अगर आप ये इनपुट सेलेक्ट हो रहा है तो टाइमिंग इस पाथ का चेक होगा, ये इनपुट सेलेक्ट हो रहा है तो टाइमिंग इसका पाथ का चेक हो रहा है, लास्ट वाला इनपुट सेलेक्ट हो रहा है तो टाइमिंग इसका पाथ का चेक होगा, ठीक है। तो अगर लेकिन अगर सब एक दूसरे से सटे हैं,
ऐसे ऐसे, तो इसका भी डिले अलग, इसका भी डिले अलग, इसका भी अलग, इसका भी अलग। इट्स मीन यहाँ पे डिले ना ज्यादा है, मोर है, अगर ऐसे लगा हुआ है तो। और ऐसे कर दोगे तो डिले कम हो जाएगा। एक मेथड ये भी होता है ना, आर्टिफिशियल ऐसे फिक्स कर देता है, अगर कम्बो इस टाइप के होते हैं, मैक्सिमम कर देते हैं, जैसे कि हमारा डिले जहाँ पे डेटा पाथ में ज्यादा आ रहा था उससे कम हो जाएगा। तो इससे भी आपका सेटअप वायलेशन रिमूव हो जाएगा। चलो, ये रहा आर्टिफिशियल डिजाइन इंजीनियर फिक्स करता है। अब देखते हैं पीडी वाले कैसे करते हैं। जो बैकएंड वाले होते हैं, फिजिकल डिजाइन इंजीनियर होते हैं, वो कैसे रिमूव करते हैं सेटअप वायलेशंस को। और ओके, बिफोर गोइंग टू नो अबाउट द सेटअप वायलेशन अबाउट द पीडी गाइस, आई विल आल्सो वांट टू टेल, जो आर्टिकल डिजाइन होता है, जो फ्रंट एंड वाला पार्ट होता है ना, वो होल्ड वायलेशन चेक नहीं करते हैं, ठीक है। वो सिर्फ सेटअप वायलेशन ही चेक करते हैं। होल्ड वायलेशन ऑलवेज हम फर्स्ट फ्लॉप पे चेक करते हैं, ठीक है। ऑलवेज होल्ड वायलेशन फर्स्ट फ्लॉप पे चेक करते हैं। तो ये फर्स्ट जो फ्लॉप है ना, वो सेटअप वायलेशन आर्टिकल डिजाइन इंजीनियर के लिए, आप इस, क्योंकि वायलेशन इसमें जा रहा था इस क्लॉक के रिस्पेक्ट में, सेकंड क्लॉक के रिस्पेक्ट में, तो आर्टिकल डिजाइन इसको तो फिक्स कर लिया है यहाँ पे करके। बट इसके पास ये नहीं होता है ना, डेटा को चेंज थोड़ी कर सकते हैं ना यार। इसलिए क्या होता है ना, जो हमारा आर्टिकल डिजाइन इंजीनियर होते हैं, वो जब होल्ड वायलेशन आता है ना, तो इसको चेक नहीं कर पाते हैं। उनको पता तो चलता है कितना सिंथेसिस करने में, बट वो फिक्स नहीं कर पाते हैं। तो ऑलवेज होल्ड वायलेशन पीडी गाइस करते हैं। हम उसको रिपोर्ट कर देते हैं कि हाँ इतना आ रहा है, आप चेक करके रिमूव कर दो। ये हमारे मान का नहीं, कर तो हम भी लेंगे, ऐसा नहीं है। बट मेथड ये भी जानते हैं, आर्टिकल डिजाइन इंजीनियर भी जानते हैं, बट ये नहीं करते हैं, पीडी गाइस जल्दी करते हैं। तो अब देखो पीडी गाइस पहले सेटअप कैसे रिमूव करते हैं, फिर बात करते हैं होल्ड कैसे करेंगे, क्योंकि अभी सेटअप का ही बात करें। तो आ जाओ सेटअप के लिए, अब बात करते हैं हमारे पीडी वाले भैया लोग कैसे इसको करते हैं, ठीक है। पीडी गाइस कैसे करते हैं। पीडी मीन्स व्हाट, पीडी मीन्स व्हाट, फिजिकल डिजाइनिंग। कोई और फुल फॉर्म बता रहा है क्या इसका, फिजिकल डिजाइन। अरे पीडी एक इंजीनियर होता है यार, फिजिकल डिजाइन इंजीनियर होता है। आर्टिकल डिजाइन इंजीनियर सबका मालिक होता है, क्योंकि कोड वही लिखता है, समझ गए। कोड में ही आपको लिख के दूंगा, कोड एक आर्टिकल डिजाइन इंजीनियर ही लिख के देगा। तो सब कोड में ही मॉडिफाई करते हैं, चाहे कुछ कोड में ही ऐड करते हैं, जो भी करना होता है। तो जो आर्टिकल डिजाइन इंजीनियर होता है ना, डिजाइन इंजीनियर होते हैं, वो हेड होते हैं कोड के, और आपके कोड के आर्टिकल के, ठीक है। सभी अपने अपने जगह लेवल पे सही होते हैं, पीडी वाले भी अपने अपने जगह पे अपना बॉस होते हैं, आरटीएल वाले भी बॉस होते हैं, डिजाइन वेरिफिकेशन वाले भी बॉस होते हैं, एनालॉग वाले भी होते हैं। बट जो आरटीएल लिखता है वो आरटीएल डिजाइन इंजीनियर लिखता है। अब देखो पीडी वाले कैसे करते हैं। ये तो इनको आरटीएल का नॉलेज नहीं होता है, पीडी वालों को आरटीएल का नॉलेज नहीं होता है, आरटीएल कैसे लिखा गया होता है। तो ये भाई कभी ये तो मक्स वगैरह चाहे बफर वगैरह चाहे तो ये फ्लॉप वगैरह ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि इनको डिजाइन, इनको आरटीएल का नॉलेज नहीं है। तो ये कैसे जानेंगे कहाँ से चेक, कहाँ ऐड होगा कहाँ नहीं ऐड होगा। तो ये बेसिकली वो वाला मेथड नहीं यूज करते, इनका मेथड अलग होता है। क्या होता है वी विल सी। अब देखो, अभी तो आपको मैं डेटा पाथ सिखला रहा था, जरा सोचो, डेटा पाथ को कोई जरूरी है चेंज करना। जो रिक्वायर पाथ है उसमें भी तो कर सकते हैं ना कुछ कर सकते हैं क्या। सोचो सोचो सोचो। ओके, आप देखो, अगर इसको ऐड करोगे तो डिले बढ़ेगा घटेगा, क्लॉक चेंज नहीं कर सकते एक्चुअली। क्लॉक में फिक्स ही रहता है, क्लॉक में चेंज करना, क्लॉक एक्चुअली वो क्लॉक में बताया हूँ ना, मिलियंस नंबर ऑफ क्लॉक होते हैं, तो वो सब में जाता है। तो क्लॉक को छेड़खानी नहीं करने है। हाँ, उस पर्टिकुलर क्लॉक के लिए कुछ चेंज कर सकते हैं, बट क्लॉक आप नहीं चेंज कर सकते। चलो देखते हैं, आ जाओ, कम ऑन गाइस। इनके लिए तो कॉम्बो लिख देते हैं, इनका ये चेंज नहीं कर सकते हैं कॉम्बो। सर जब कॉम्बो को नहीं चेंज कर सकते हैं तो क्या कर सकते हैं। हाँ, आप देखो इधर क्या कर सकते हैं।
देखो ये सिंपल लग रहा है, ये पढ़ने के बाद ये मत अपने आप को 30 मार खाना कोई नहीं समझेगा कि मैं इंजीनियर बन गया। इसके अलावा ना आपको टूल नॉलेज होना चाहिए, कैसे फ्लॉप को ऐड करते हैं, कैसे लाइब्रेरीज को वगैरह ऐड करते हैं, ये सब आगे आप टूल में सीखोगे। ठीक है, बट मेथड आपको पता रहना चाहिए सब, कैसे इनपुट करते हैं, कैसे देखते हैं। ठीक है, थोड़ा बहुत हाँ अपना सीना चौड़ा कर सकते हो ये सब पढ़ने के बाद से, बट हमेशा के लिए नहीं भाई। अब देखो क्या होता है, पीडी केस क्या कर, अभी मैं आपको सेल्स वगैरह बताया हूँ, आप देखे हो क्या सेल्स वगैरह? अभी पढ़ाया हूँ जैसे इसके पहले सेल्स, जहाँ पे रोल आता है सेल्स का, ये जो आप देख रहे हो ना, क्यू सी टू क्यू, ये क्लॉक टू क्यू। ठीक है, ये बेसिकली क्या करता है ना, पीडी इंजीनियर पहला तो ये काम करता है ना, इसको फास्ट कर देता है। फास्ट करने के लिए क्या करना है, ये जो सेल्स होते हैं ना इसके अंदर एलवीटी सेल्स पुट कर देते हैं, तो ये जो हमारा टाइमिंग होता है ना फास्ट हो जाता है। फास्ट मतलब क्या है, पहले ही आ जाना, समझ रहे हो? फास्ट मतलब क्या है, पहले ही आ जाना, मतलब डिले कम। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? डिले कम। ठीक है, तो क्या ऐसे ही पुट कर देता है, यहाँ पे सेल्स को पहले क्या करते हैं, स्वैपिंग कर देते हैं। जो भी अगर इसका ज्यादा आ रहा है ना तो उसको स्वैपिंग करके कम कर देते, कम वाला यूज कर लेते हैं। जहां जहां एचवीटी लगा रहता है, एक्चुअली सी टू क्यू में बहुत सारे होते हैं यार, बहुत सारे सेल्स लगे होते हैं। ठीक है, मैं आपको बस सी टू क्यू बताया हूँ एक एक करके, बट इसमें बहुत सारे होते हैं। तो पहला पीडी वाले क्या करते हैं, जो भी सेल्स होता है ना उसको स्वैप कर देते हैं। जहां जहां भी एचवीटी लगा रहता है ना वहां से उसको एलवीटी लगा देते हैं, चाहे यूएलवीटी लगा देते हैं, अल्ट्रा वाला। ठीक है, ये थोड़े ऐसे। फर्स्ट मेथड ये क्या करते हैं, जहां जहां एचवीटी सेल्स होते हैं क्लॉक टू क्यू में, सेल्स रिप्लेसमेंट, अगर इसका एक मैं नाम दूं तो सेल स्वैपिंग। सेल स्वैपिंग करते हैं पहला। जो भी इसमें डिले ज्यादा आ रहा था ना उसको हम कम वाले से फास्ट वाले से रिप्लेस कर दे रहे थे, कर देंगे। तो एचवीटी को हम क्या किए हैं, इसको रिप्लेस कर दिए किससे, एलवीटी से। कि ये काम तो पहले ये करते हैं, पहले ये ऐसे फिक्स कर देते हैं कि जो भी है यहाँ पे इसको स्वैपिंग करके हम अपना एलवीटी लगा देंगे। या तो एलवीटी लगाते हैं या तो यूएलवीटी लगाते हैं। अगर इससे फिक्स नहीं होता है तो ये लगा देते हैं, बट इसके साथ लीकेज वगैरह बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि पता है आपको एलवीटी में लीकेज बहुत ज्यादा होता है, और इसमें तो और ज्यादा होता है। तो लीकेज देखना पड़ता है कि कंप्रोमाइज होने लायक है कि नहीं है, तब जाके हम अपना ये मेथड लगाएंगे। बहुत कुछ फैक्टर देखना पड़ता है। तो क्या करते हैं, सेल्स को क्या करते हैं, कम कर देते हैं, फास्ट कर देते हैं। पहला मेथड ये होता है। तो हमारा डेटा पाथ जो भी है उसका कम हो जाएगा, तो आराम से सेटअप मीट हो जाएगा। सेटअप भी वैल्यूएशन भी रिमूव करता है। ठीक है, देखो क्या होता है ना, एसटीए कई टाइप्स के होते हैं, यहाँ मैं आपको बता दूं। ये सब सेटअप होता है, एक आरटीएल टू प्री, आरटीएल वर्सेस प्री। बता रहा हूँ प्री क्या, ठीक है बोलने मत लेना। आरटीएल टू पोस्ट। ठीक है, ये दो टाइप के हम सिंथेसिस रन कराते हैं, जिसमें हमको एसटीए चेक करना होता है, स्टैटिक टाइम एनालिसिस। तो जो आरटीएल टू प्री है ना, तो ये प्री मीन्स क्या है, नेटलिस्ट होता है, जो सिंथेसिस के बाद से जनरेट होता है, नेटलिस्ट। तो हम इसका टाइमिंग चेक करते हैं, जो हमारा ओरिजिनल आरटीएल है इसके बीच में हमारा टाइमिंग ठीक है कि नहीं। एक होता है आर्टिकल टू, यहाँ इसमें एसटीए में ये जो आता है, इसमें अपना फ्रंट एंड वाला एसटीए आ जाता है, प्री एसटीए। बट होल्ड चेक करने के लिए इसके लिए हम भेज देते हैं पीडी वाले को। बट जो आरटीएल टू पोस्ट होता है ना, इसमें मेनली इन्वॉल्व होते हैं पीडी वाले, जिसमें क्या करते हैं, सेटअप एंड होल्ड दोनों चेक करते हैं। इसमें अगर चेक करना रहेगा सेटअप तो आरटीएल वाले कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, बट मेनली पीडी वाले गाइस करते हैं। ठीक है, ये रहा आपका ज्यादा एडवांस लेवल का। ये ना समझ में आया तो कोई बात नहीं। ठीक है, तो पहला मेथड क्या हो गया, सेल स्वैपिंग का, जिससे हम सेटअप वायलेशन रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आपने इसको समझ गया होगा सेल स्वैपिंग का मतलब क्या है। इसको नहीं समझ में आया सेल स्वैपिंग का मतलब क्या है, जल्दी बोलो।
समझ ना 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 ठीक है, वो भूल जाओ कैसे चेंज करते हैं, वो छोड़ दो। लाइब्रेरी में सेल्स होते हैं, उसको रिप्लेस करते हैं, वो आओ टूल पे जानोगे। ठीक है, अभी बस ये मेथड जानो सेल शॉपिंग का, क्यों सेल शॉपिंग किए हैं इसका मीनिंग जानना है। ठीक है, कैसे करते हैं वो आओ जानोगे। अब ये जानो क्यों करते हैं, अब कैसे रिमूव करते हैं, ये ऐसे करते हैं। ठीक है, रीजन जाना, एचबीटी से एलबीटी क्यों किए, एलबीटी क्यों किए, एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, सब मैं बता दिया हूँ आपको। अब देखो इसके बाद से क्या करते हैं। ठीक है, ये पहला पीडी गाइस ऐसे कर लेते हैं। अगर होल्ड आ गया तो अब क्या करेंगे, पीडी गैप कैसे होल्ड को चेक करेंगे। ठीक है, अगले वाले पेज में आते हैं। होल्ड को चेक करने के लिए देखो क्या करते हैं। ठीक है, तो सेटअप ऐसे हम चेंज कर लेंगे। इसके अलावा भी बहुत सारे मेथड्स होते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो भी हमारा ये डेटा पाथ है, इसमें हम राइजिंग टाइम, फॉल टाइम देख लेते हैं। ठीक है, ये अब बताना मत किसी इंटरव्यूअर को, राइजिंग एंड फॉल टाइम भी चेक कर लेते हैं। चलो ये पढ़ाते ही नहीं है, जो काम का है वो है। सेल शॉपिंग मतलब क्या है, देखो सी टू क्यू के अंदर बहुत सारे सेल्स होते हैं। ठीक है, एचवीटी भी होते हैं, एलवीटी भी होते हैं, एसवीटी भी होते हैं। तो बेसिकली आपको चेक करना है, जो भी एचवीटी सेल्स हैं उनको हम रिप्लेस कर देते हैं, सेल स्वैपिंग कर लेते हैं, एचवीटी टू एलवीटी चेंज कर देते हैं, जिससे कि हमारी टाइमिंग अच्छे से मीट हो जाए। क्योंकि एलवीटी का टाइमिंग बहुत फास्ट होता है, डिले कम होता है। और एचवीटी में अभी मैंने स्टार्टिंग बताया आपको, डिले बहुत ज्यादा होता है, टाइमिंग स्लो होता है। तो जहां भी एचवीटी सेल्स होते हैं उसको रिप्लेस कर दो एलवीटी से, तो हमारा डेटा का पार्ट कम हो जाएगा। इंक्रीज हो सकता है, हम चेक करेंगे, उसका भी चेक करेंगे, इसलिए मैंने भी हटा दिया यहाँ पे। उसका चेक करेंगे, बिल्कुल चेक करेंगे। क्योंकि सेल्स में भी राइज टाइम फॉल टाइम होता है, बिल्कुल होता है। बट आपको सब देखना पड़ेगा कि कौन सा कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, उसके हिसाब से ही करना है। ठीक है, बट ये मेथड है, आप ये जानो। आगे देखो, ये छोड़ दो, ये भूल जाओ, ये मैंने झूठी बता दिया, ये छोड़ दो। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं। देखो इसके नीचे देखो क्या है। अब हम होल्ड कैसे वैल्यूएशन रिमूव करेंगे और होल्ड वैल्यूएशन आता कैसे, ये देखो। ठीक है, ये जो आरटीएल प्री जिसको समझ में आ गया ठीक है, अदरवाइज वो काम की चीज है। पर आगे आओगे तो पढ़ोगे आरटीएल प्री क्या है, आरटीएल पोस्ट क्या है। चाहे जब मैं एसिक डिजाइन पढ़ाऊंगा ना, एसिक भी आपको पढ़ाना है ना अभी, एसिक के अंदर आपको मैं बताऊंगा। ठीक है, किट्स बताऊंगा, आर्किटेक्चर बताऊंगा, सिंथेसिस बताऊंगा, वहां भी प्री एसटीए बताऊंगा, डीएफटी बताऊंगा। ठीक है, इसके बाद से मैं आपको सीटीसी बताऊंगा। ये सब क्या है पूछना ना, तभी मैं बताऊंगा। लॉ ऑफ सिंथेसिस ये सब क्या है मैं बताऊंगा। पीडी वेरिफिकेशन बताऊंगा आपको, लेआउट डिजाइन बताऊंगा। ठीक है, ये सब उसके पार्ट हैं। जो एसटीए का फ्लो जानता है, यही फ्लो होता है एसटीए का। ये सब आपको पढ़ाया जाएगा। अभी मैं कंफ्यूज नहीं करना चाहता हूँ, इसलिए मैं बता दूं। सिंथेसिस वगैरह भी पढ़ाया जाएगा आपको, तो सिंथेसिस में बताऊंगा सेल सॉर्टिंग कैसे होता है। अब देखते हैं होल्ड वायलेशन कैसे रिमूव करता है पीडी में। होल्ड वायलेशन, देखो मैंने होल्ड मतलब क्या है, होल्ड वायलेशन कब आ सकता है, अगर ये पे फ्लॉप है, ये क्या कॉम्बो में। ठीक है, ये हो गया डेटा। देखो होल्ड वायलेशन कब आ रहा था, ये कोई बताए, डेफिनेशन बताए, ये आफ्टर होता है कि बिफोर होता है। आफ्टर डेटा मस्ट बी स्टेबल। होल्ड वायलेशन इज द मिनिमम टाइम that our data is must be stable after the rising rate of the rate। ठीक है, जो मिनिमम टाइमिंग बोला हो ना, वो डेफिनेशन बोलना नहीं है। ऐसे मतलब जुबान पे रहना चाहिए, अगर मैं बोल दूं तो पट से जुबान से निकल जाए, ऐसे आपको याद रहना चाहिए। क्योंकि अगर डेफिनेशन याद नहीं रहा तो कोई भी क्वेश्चंस नहीं बना पाओगे, रटोगे तो पिटाई खाओगे। अगर कोई भी रट के बताया तो डेफिनेशन याद रखना है, उससे सब कुछ करना है।
तो आफ्टर होना चाहिए, इट्स मीन क्या होना चाहिए, जो भी हमारा रिक्वायरमेंट है, टी रिक्वायरमेंट है, वो कम होना चाहिए कि ज्यादा होना चाहिए? एनीवन? कम होना चाहिए। तो देखो, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होता है, और ठीक है चलो स्लैक से ही बता देते हैं, सेटअप्स, सॉरी ये सेटअप नहीं, देखो होल्ड फिक्स करना बड़ा मुश्किल होता है, इसीलिए पीडी वाले ही करते हैं। ये भी जान जाओ, हम भी कर सकते हैं ऐसा नहीं है, बट परमिशन नहीं होता हमको, बहुत कुछ चेक करना होता है। होल्ड स्लैक, होल्ड स्लैक का अगर मैं बात करूं तो क्या होना चाहिए, जो भी टी डी होना चाहिए माइनस टी आर। अगर ये निगेटिव हो गया इट्स मीन क्या है, ये वायलेशन है। ठीक है, तो ये हमारा मेन कंडीशन है। अगर टी रिक्वायरमेंट यहाँ पर ज्यादा आ गया, ये तो चलो करेक्ट है, ठीक है ये तो करेक्ट है फिर, बट अगर टी रिक्वायरमेंट ज्यादा आ गया तो ये क्या हो गया, वायलेशन। अगर ऐसे क्वेश्चन में आ गया ना तो वायलेशन आ गया। अब मैं क्वेश्चन का एग्जांपल नहीं ले रहा हूँ बार बार, टाइम वेस्ट होगा, क्योंकि मैं एग्जांपल सेटअप नहीं दे रखा था। इन केस अगर हमारा टी रिक्वायरमेंट ज्यादा आ गया, टी डेटा कम आ गया, तो होल्ड वायलेशन हो गया। तो हमारा क्या होना चाहिए, डेटा पाथ ज्यादा आना चाहिए, रिक्वायरमेंट पाथ ज्यादा नहीं आना चाहिए। सही है? हेलो, हो आप लोग यहाँ पे? चलो सेटअप में कुछ थोड़ा, इसको थोड़ा होल्ड पे रखते हैं, होल्ड वायलेशन है तो होल्ड पे रख दो। सेटअप वायलेशन एक मेथड से और ही कर सकते हैं, हटा सकते हैं। सेल्स शॉपिंग तो एक मेथड हो गया, एक मेथड और बताना था, देखो ऐसे ही याद आता है। आ जाओ इधर आ जाओ, सबको ध्यान दो इधर। ये तो पहला मेथड होगा सेल्स शॉपिंग का। दूसरा मेथड क्या हो सकता है, अभी जैसे ही ये बताना चालू हुआ ना, दिमाग में चढ़ गया है। इसका एक मेथड और होता है, इससे भी हम किए हैं, एक्चुअली मैंने किया है। दूसरा मेथड क्या है, आप देखो, स्क्यू ऐड करना और बफर ऐड करना, आप जो कर लो। इसमें भी थोड़े डिसएडवांटेज भी हैं, एडवांटेज भी हैं। बफर ऐड करना, ये सेटअप वाला है, ठीक है, होल्ड वाला नहीं है। तो समझ लीजिए, अगर आपके पास, देखो टाइम लगेगा ठीक है, लेकिन खत्म करके मानेंगे इसको आज। ये सपोज आपके पास दो फ्लॉप है, लॉन्चर कैप्चर, ये रहा कॉम्बो, ये रहा डेटा फॉर, ये रहा कॉम्बो। ध्यान से ठीक है, थोड़ा ध्यान देना इधर, मिस मत करना ये वाली पॉइंट। तो यहाँ पे लिख रहा हूँ, कंडीशन क्या था हमारा, जो भी हमारा टी रिक्वायरमेंट है वो ज्यादा होना चाहिए था, टी डेटा चाहिए, यही था ना? तो अगर मान लो इन कंडीशन अगर आपका आ रहा था, इसके पहले क्या आ रहा था, डेटा ज्यादा आ रहा था रिक्वायरमेंट से, तो एक मेथड तो हो गया आपका सेल स्वैपिंग का। आप ऐसा भी तो कर सकते हो ना कि इस पाथ में बफर लगा रहे हैं, स्क्रू लगा रहे हैं क्लॉक की, तो टी रिक्वायरमेंट तो ऑटोमेटिक ज्यादा हो जाएगा ना? हेलो, तो दूसरा मेथड क्या है ना, आप रिक्वायरमेंट को ही ज्यादा बना दो ना। अगर मान लो ये आ रहा है टी डेटा आपका 0.6 आ रहा है, और ये 0.5 आ रहा है, इट्स मीन ये ज्यादा है डेटा पाथ, तो वायलेशन आ रहा है। मेरे भाई इसमें बफर ही ऐड कर दो ना, खूब ज्यादा 0.6 का बफर ऐड कर दो। तो अगर 0.6 का ऐड कर दिए तो बढ़ गया, लो लो हो गया कंडीशन। तो आप ये भी कर सकते हो, बफर कर सकते हो, बफर ऐड कर सकते हो क्लॉक पाथ में। तो भी आप ये एक्चुअली पीडी गाइस ही करते हैं, ठीक है, बफर वगैरह ऐड कर देते हैं। बट ये बफर क्या होता है ना, इसमें राइज टाइम फॉल टाइम का भी दिक्कत आता है बफर ऐड करने में। तो अगर ये क्लॉक ना कहीं और भी जा रहा हो, अगर मान लो किसी और भी फ्लॉप में जा रही है,
ठीक है, क्योंकि बताया आपको मिलियन नंबर ऑफ क्लॉक होते हैं। ठीक है, अगर ये आगे और कहीं जा रहा हो, किसी और में जा रहा हो, ठीक है, सेम के सेम क्लॉक, तो इस राइज टाइम ठीक है और फॉल टाइम की वजह से ना, ये फॉल टाइम और राइज टाइम की वजह से ना आगे वाला क्लॉक पे भी इफेक्ट हो सकता है, जिटर वगैरह आ सकता है, जो मैं आपको स्टार्टिंग में बताया था, जिसकी वजह से आगे वाले डिजाइन में ना कुछ दिक्कत आ सकता है। ठीक है, तो ये एक मेथड है, बफर वगैरह ऐड कर देंगे। बट अगर ये कब ऐड करेंगे, अगर इसके आउटपुट में कुछ ना लगा हो, इसके बाद कोई सर्किट ना हो। बट अगर इसके बाद सर्किट और भी हैं, तो यहाँ पे ये थोड़ा ध्यान से लगाना पड़ता है, बैलेंस करना होता है, ये बहुत मुश्किल होता है बैलेंस करना। ठीक है, आगे बहुत सीटीसी जब मैं पढ़ाऊंगा आपको क्लॉक ट्री सिंथेसिस, तो क्लॉक ट्री में ना बहुत सारे बफर्स होते हैं यार, तो बैलेंस करना बहुत मुश्किल होता है, यहाँ पे कितना लगाएं कि आगे पे भी इफेक्ट ना हो, बहुत आगे वाली डिजाइन भी देखना पड़ता है। तो बट ऐसे लगाना है कि मैच कर जाए। ठीक है, राइस टाइम जो भी फॉल टाइम है इतना बफर लगाओ कि आगे का भी सही हो, ज्यादा इफेक्ट ना हो। तो एक मेथड और भी होता है, दूसरा मेथड क्या लिख सकते हैं हम, स्क्यू और बफर ऐड करना। अच्छा, लिख दिया हूँ, किस पाथ में, क्लॉक पाथ में। और रिक्वायरमेंट, यहाँ से भी आप सेटअप का वैलिडेशन कर सकते हो, ये भी पीडी वाले गाइस करते हैं। डिसएडवांटेज क्या है, इसके भी डिसएडवांटेज लिखो, सब बताना है आपको, अगर मैं इंटरव्यू में पूछ दूं ना तो सब बताना है, जितना ज्ञान दिया हूँ सब ज्ञान दे रहा है, ये सब मिलेगा भी। इसके डिसएडवांटेज क्या है, it may be the rise time or fall time may be affect, yeah, due to buffer, चलो ठीक देता हूँ, due to skew और buffer, buffer rise और fall time, rise and fall time may be affect to other circuit which have same clock, which has same clock। ये समझे पॉइंट का मीनिंग क्या है, यहाँ पे ये मत पूछना राइट टाइम फॉल टाइम क्या है, ठीक है, ये मैं बताऊंगा, अभी ये जान जाओ कि है क्या ये। यस, यस, बफर में भी इंटरनल कैपेसिटर होता है। ठीक है, और जहां भी कैपेसिटर आता है वहां पे भी राइस टाइम फॉल टाइम का कंसेप्ट आ जाएगा, तो इसको भी बहुत मैनेज करके ऐड करना पड़ता है, बहुत डिफिकल्ट होता है एक्चुअली ये सब करना, बट ये एक मेथड है। अब आ जाओ होल्ड पे, आ जाओ आ जाओ, अब आ जाओ होल्ड पे। ठीक है, थोड़ा मतलब डिसएडवांटेज ये है कि आपका कोई जरूरी नहीं है कि सेल्फ सर्विंग कर दिए तो आपका टाइमिंग मीट ही कर जाए, टाइमिंग नहीं मीट करे तो इसमें ही जाना पड़ेगा, उसमें कोई डिसएडवांटेज नहीं है। अरे यार, क्या डिसएडवांटेज नहीं है यार, अगर जहाँ, हाँ है ना, इसमें डिसएडवांटेज इसमें भी है यार, यहाँ लिखा है ना आपको, एचबीटी से आप एलबीटी कर रहे हो तो क्या बढ़ सकता है यहाँ पे, लीकेज, सब देखना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो इसीलिए कह रहा हूँ बैलेंस करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, आपको सब चीजों पे, सभी बातों पे ध्यान रखना पड़ेगा। आ जाओ होल्ड पे आ जाओ, ध्यान से, ठीक है। होल्ड वैल्यूएशन अभी मैं बताया हूँ आपको, अगर हमारा टी ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई करता है, डेटा पाथ ज्यादा होना चाहिए रिक्वायरमेंट पाथ से, देन नो होल्ड वैल्यूएशन। बट अगर ये उल्टा हो गया, रिक्वायरमेंट पाथ ज्यादा हो गया, डेटा पाथ कम हो गया, तो होल्ड वैल्यूएशन आ जाएगा। इसके लिए हम क्या करेंगे सर, सिंपल सी बात है, इसके लिए क्या करना है आपको, बफर कहाँ ऐड करोगे इसके लिए, चलो जल्दी बताओ, ये कंडीशन चाहिए, कहाँ बफर ऐड करोगे, हाँ मैं डेटा पाथ में कहूँ नहीं, डेटा पाथ को ही बढ़ाना है, तो कहाँ पे आप बफर ऐड करेंगे, आप लोग बोलो, यहाँ पर बफर ऐड करेंगे इस बार।
ठीक है, खूब सारा बफर लगा लें। इसका भी डिसएडवांटेज बता रही हूँ बफर का, तो जब भी होल्ड वायलेशन आता है ना, बिल्कुल हो सकता है, तो चेक करना है, एक्चुअली हमको प्रॉपर चेक करना है कि सेटअप वायलेशन भी ना हो। ठीक है, तो यही इसीलिए बता रहा हूँ, बहुत डिफिकल्ट होता है बैलेंस करना, बट इधर ही से बैलेंस करते हैं होल्ड वायलेशंस। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं, इसकी बफर ऐड करते हैं इसके लिए। इस देखो, अभी विश्वनाथ बोला ना, बिल्कुल करेक्ट बोला, इसकी जब ऐड करोगे तो हो सकता है डेटा पाथ बहुत ज्यादा हो जाए रिक्वायरमेंट से, तो सेटअप वायलेशन भी आ जाए। इसीलिए कह रहा हूँ, ये बहुत डिफिकल्ट होता है कि हमको बैलेंस करना, बहुत प्रॉपर आपको देख के बैलेंस करना पड़ेगा। इसकी बफर ऐड इन डेटा होल्ड वायलेशन, ये कौन करता है, आरटीएल डिजाइन करता है कि पीडी गाइस करता है, कौन करता है ये, पीडी गाइस। ठीक है, तो ये है होल्ड वायलेशन को रिमूव करने का तरीका, एक मात्र तरीका, जिसको आपको चेक भी करना है प्रॉपर, कि इसमें चेक ऐसा नहीं है कि ऐड करने के चक्कर में हम सेटअप वायलेशन आ रहे हैं ना, तो प्रॉपर आपको देखना पड़ेगा। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है, तो आज यस कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल कर सकते हैं, बट जनरली यही करते हैं, बिल्कुल कर सकते हो आप, सेल्फ सेटिंग भी कर सकते हो, बट उससे ना सेटअप वायलेशन इफेक्ट हो जाता है, जनरली करते नहीं है, बट आप कह रहे हो तो कर सकते हो, इसमें मेरा कोई मजबूरी है बिल्कुल, बट जनरली करते नहीं है सब। ठीक है, मैं रिकॉर्डिंग बंद कर रहा हूँ, आपको जो भी डाउट है आप पूछो।